7th, and the aim of this experiment is organic spotting, means identification of an organic compound. I will give an organic compound, and you are supposed to find out its elements which are present, the functional group, the melting point, the boiling points, and similarly, finally, after going through so many tests, you will come to the conclusion. The compound which was given to you, that was aniline, benzoic acid, benzaldehyde, something like that. So one unknown compound will be given, and it will be asked to identify the given organic compound. And that identification of organic compound is done by going through number of chemical tests. There are some 4 or 5 types of tests are there. After performing each test, you will get some conclusion from the test. Similarly, thus collect the conclusion of all these tests. Finally, you will get the final result, and you will come to know the given compound was benzoic acid, acetic acid, benzaldehyde, aniline, anthracene, something like that. So, how to analyze, how to identify the given organic compound? Which are the tests are mentioned? Which test is to be taken? And from each test, what are observations to be made? And from that observation, what inference can be drawn? And finally, collecting all these observation and inference, we will come with the conclusion of this test. So remember, I will just tell you the number of tests, and in each test, what are the sub-tests to be performed. तो सबसे पहली जो टेस्ट होती है, जब भी कोई कंपाउंड आपके टेबल पे दिया रहेगा, the compound may be solid, it may be liquid, and it will be asked to identify the given organic compound. That is in short for organic spotting. तो सबसे पहले आपको अपने टेबल पे जाने का, you take your paper or you take your notebook, draw 3 columns. पहला कॉलम में रहेगा टेस्ट, दूसरा कॉलम में रहेगा ऑब्जर्वेशन, और तीसरा कॉलम में रहेगा इन्फरेंस. Now test, how many tests you are going to perform to identify the given organism? तो सबसे पहली टेस्ट है, उसका नाम है प्रिलिमिनरी टेस्ट. और उस प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपके पास देखिए तकरीबन आपके पास 4 टेस्ट. टेस्ट नंबर 1 कलर, odor, then action of chemophore, and then hitting on wire, copper wire balls. ये 4 टेस्ट हम लोग प्रिलिमिनरी टेस्ट में परफॉर्म करेंगे. After performing these 4 tests, you will get some idea, some conclusion, and you can use that ideas and conclusion in recognizing the organic compound. After this test, then comes the second test called solubility test. You will check the solubility of the compound, whether it is water soluble or water insoluble. So if it is water soluble, then you have to go for the third test, or you can go for the second test, B test, type determination for water soluble. अगर वो water soluble है, type determination for water insoluble compound. Type मतलब कि जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिया है वो एसिड है, कि बेस है, कि फिनोलिक है, कि न्यूट्रल है. व्हाट इज द टाइप ऑफ योर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज गिवन टू यू? तो टाइप को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया कि जो आपका कंपाउंड है वो सोल्यूबल है कि इनसोल्यूबल है. सोल्यूबल है तो टाइप डिटरमिनेशन फॉर वाटर सोल्यूबल, अगर इनसोल्यूबल है तो टाइप डिटरमिनेशन फॉर वाटर इनसोल्यूबल. बिकॉज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाटर सोल्यूबल, सम मैक्सिमम कंपाउंड्स आर वाटर इनसोल्यूबल, वेयर देयर आर वेरी फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर वाटर सोल्यूबल. तो सोल्यूबल के लिए अलग टेस्ट है, इनसोल्यूबल के लिए अलग टेस्ट है, और उस टेस्ट को कहते हैं टाइप डिटरमिनेशन. टाइप डिटरमिनेशन मतलब वेदर इट इज एसिड, वेदर इट इज फिनॉल, वेदर इट इज बेस, वेदर इट इज न्यूट्रल, कौन सा टाइप का कंपाउंड है. तो फिर एसिड है तो हमको पता होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, फिनॉलिक भी एसिड होते हैं. वेदर इट इज बेस तो कौन से कंपाउंड बेसिक कैटेगरी में आते हैं. वेदर इट इज न्यूट्रल तो कौन से कंपाउंड न्यूट्रल की कैटेगरी में आते हैं. तो ये हमारा बी टेस्ट होती है जिसको कहते हैं टाइप डिटरमिनेशन. देखो इसके पहले सोल्यूबिलिटी चेक करना होता है. टाइप डिटरमिनेशन हो गया. एक तीसरी टेस्ट आती है जिसको कहते हैं फिजिकल कांस्टेंट. मतलब सॉलिड है तो आपको मेल्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा, लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट लेना. आप जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. अगर मेल्टिंग पॉइंट सही तरीके से फाइंड आउट किया तो आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाता है. यू कैन गेट ए ग्लिम्स कि विच इज योर कंपाउंड, विच इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज सप्लाइड टू यू. तो वो हमारे तीसरी टेस्ट है जिसको कहते हैं डिटरमिनेशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. और चौथी टेस्ट है जिसको कहते हैं लासाइन टेस्ट, एलिमेंटल डिटेक्शन टेस्ट, डिटरमिनेशन नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन. ये 3 एलिमेंट आपके कंपाउंड में है कि नहीं, नाइट्रोजन है कि नहीं, सल्फर है कि नहीं, हाइड्रोजन है कि नहीं, ये तीनों एलिमेंट को फाइंड आउट करना, उनका कंपाउंड वेदर दिस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नॉट, वो टेस्ट को हम कहते हैं लासाइन टेस्ट,
सोडियम फ्यूजन टेस्ट या एलिमेंटल डिनेशन टेस्ट, वो टेस्ट हम बाद में लेंगे। लेकिन पहले मैं आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, उससे हमको बहुत सारी आइडिया इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारे को जो दिया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन से कैटेगरी का या कौन कौन हो सकता है। देखिए सबसे पहला कलर देखना है। इस कलर को देखने के लिए आपको कोई परफॉर्म नहीं करना पड़ता है। देखिए मेरे पास एक कंपाउंड है, ये बीकर में दिया हुआ है, सॉलिड है, और डायरेक्ट देखा व्हाइट कलर है, तो मैंने अपने नोटबुक में लिखा कंपाउंड इज व्हाइट। अब कौन कौन से कंपाउंड जो व्हाइट कैटेगरी में आते हैं तो वहाँ पे रेफरेंस इंफॉर्मेशन लिखिए। बेंजोइक एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड हो सकता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच आर हैविंग व्हाइट कलर। लेकिन बहुत सारे में हमारा एक ही कंपाउंड है जो उसमें हो सकता है, तो कलर के लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, कलर हम डायरेक्ट देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी टेस्ट है ओडर, आप जानते हो ओडर इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर वो कंपाउंड अगर उसमें कैसी स्मेल है, जस्ट ब्रिंग योर नोज क्लोज टू द माउथ ऑफ द बीकर एंड जस्ट ट्राई टू गेट सम स्मेल। अब वो स्मेल कैसी लगती है कि फिशी स्मेल है, बिटर अल्मोंड स्मेल है, फ्रूटी स्मेल है, कैसी स्मेल है? बिकॉज द स्मेल ऑफ द कंपाउंड विल गिव यू सम आइडिया अबाउट द क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि वो कौन सी क्लास है, एस्टर फैमिली है, एल्डिहाइड फैमिली है, एसिड फैमिली है, अमाइंस फैमिली है। तो इससे हमको एक आइडिया मिल जाता है कि हमारा कंपाउंड कौन से क्लास का है, तो हमारा ऑर्डर। तो ये दोनों टेस्ट के लिए हमको खाली जस्ट वी हैव टू चेक, वी हैव टू जस्ट सी विजिबिलिटी, वी हैव टू सी बाय आवर नेकेड आई एंड वी हैव टू जस्ट टेक द स्मेल एंड देन यू कैन गेट सम आइडिया अबाउट द कंपाउंड। लेकिन जो तीसरी टेस्ट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्शन ऑफ केमरोफोर, डाइल्यूट केमरोफोर टेस्ट। इसको हम बेयर्स टेस्ट भी कहते हैं, बेयर्स टेस्ट। और ये टेस्ट से हमको पता करना है कि जो कंपाउंड आपको दिया है वो अनसैचुरेटेड है कि सैचुरेटेड है, वेदर देयर इज एक्सटेंडेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि अगर अनसैचुरेटेड तो मल्टीपल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड हो गया तो ट्रिपल बॉन्ड है, या तो आपके कंपाउंड सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, सैचुरेटेड फैमिली वाला है। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो बहुत सिंपल टेस्ट है, उसको हम बोलते हैं बेयर्स टेस्ट। उसमें क्या करना है, सब्सटेंस लेना है टेस्ट ट्यूब में, और उस सब्सटेंस को टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद उसमें केमरोफोर, डाइल्यूट केमरोफोर डालना है, और प्लस उसमें थोड़ा सी अल्कली डालना है। ये तीनों चीज डालने के बाद आपको देखना है कि डी कलराइजेशन होता है, बिकॉज वी नो केमरोफोर कलर इज पर्पल कलर, पिंक कलर। वो पिंक कलर कलरलेस हो रहा है क्या, इसका मतलब डी कलराइज हो रहा है। डी कलराइज मतलब आपका कंपाउंड अनसैचुरेटेड। और अगर वो पिंक कलर का कलर चेंज नहीं हो रहा है, डी कलराइज नहीं हो रहा है, मतलब नो डी कलराइजेशन, मतलब आपके कंपाउंड सैचुरेटेड है, मतलब वो सिंगल बॉन्ड वाली फैमिली है। तो देखिए मैं आपके सामने वो टेस्ट परफॉर्म करता हूँ किस तरीके से वो कंपाउंड सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड। ये मैंने स्पैचुला लिया, स्पैचुला से मैंने थोड़ा सी पिंच क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस इसके अंदर डाला। सी आई जस्ट टेकन पिंच क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस इन द previously cleaned tube. Now this is my kemonophore. You can see pink color. Now I will put some amount of kemonophore solution in this. डालने के बाद you can see just shake it so that it will get dissolved. अब उसको just add sodium carbonate solution. This is my sodium carbonate solution, alkaline kemonophore. Look at here. Now you can see the pink color disappear. मतलब decolorization. पहले pink color था, लेकिन जैसे ही मैंने सोडियम कार्बन डाला तो पिंक कलर लेस हो गया, मतलब डी कलराइजेशन हो गया। इसका मतलब आपका कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। तो ये टेस्ट से हमको पता चलता है हमारे को जो कंपाउंड सप्लाई किया है वो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड है। तो सिर्फ क्या करना है, सब्सटेंस को टेस्ट ट्यूब में लेना है, उसमें डाइल्यूट केमरोफोर डालना है, प्लस थोड़ा सी अल्कली सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन डालना है, और ये दो बातें ऑब्जर्व करना है कि डी कलराइजेशन, अनसैचुरेटेड, नो डी कलराइजेशन मतलब सैचुरेटेड। ये हमारी तीसरी अहम टेस्ट है। चौथी टेस्ट, ये तीसरी टेस्ट हमको परफॉर्म करना पड़ती है, चौथी टेस्ट भी परफॉर्म करना पड़ती है, दैट इज फॉर हीटिंग ऑन कॉपर बॉक्स। और उससे हमको पता चल जाएगा कि वेदर सूटी फ्लेम है कि अनसूटी फ्लेम है। हमको ये ऑब्जर्व करना है, सूटी फ्लेम मिले तो आपको एरोमेटिक है, नॉन सूटी फ्लेम मिले तो एरोमेटिक है। तो सिर्फ क्या करना है, आपको कंपाउंड को स्पैचुला में लेना है। स्पैचुला में लेने के बाद यू होल्ड दैट स्पैचुला containing your organic compound in the flame and just observe the nature of the flame, how the compound burn. Because we know one of the important characteristics of organic compounds are generally combustible. तो जैसे वो कंपाउंड को आप फ्लेम में होल्ड करेंगे तो बर्न होगा, वो जलने लगेगा। तो जलने के टाइम पे उसका धुआं, उसका जो स्मोक है, उसका कैसे निकलता है? क्या वो क्लीन स्मोक है? क्या उसमें स्मोक कार्बन पार्टिकल निकल रहा है क्या? अगर उसमें बहुत सारा धुआं निकल रहा है, कार्बन निकल रहा है, अनबर्न्ड कार्बन निकल रहा है, इसका मतलब सूटी फ्लेम है। द कंपाउंड इज बर्न विद द सूटी फ्लेम। अगर वो सूटी फ्लेम है, इसका मतलब आपका कंपाउंड जो है एरोमेटिक है, मतलब उसमें बेंजीन वाला कंपाउंड है, उसमें बेंजीन रिंग होगी। या अगर वो कंपाउंड बर्न हो रहा है लेकिन उसमें कोई सूट नहीं निकल रहा है,
कोई अनबर्न कार्बन नहीं निकल रहा है। जैसे हमारे घर में जो एलपीजी गैस होती है, एलपीजी गैस जब बंद होती है तो कहीं धुआं नहीं निकलता है, कहीं कार्बन पार्टिकल नहीं निकलते, क्लीन फ्लेम होती है। और वो क्लीन फ्लेम होती है तो हम बोल देते हैं कि ये नॉन सूटिंग फ्लेम, द कंपाउंड इज बर्न विथ नॉन सूटिंग फ्लेम। एंड नॉन सूटिंग फ्लेम मतलब इंडिकेट इज एलिफेटिक कंपाउंड। तो ये दो बातें हमको चेक करना है, ये एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है। तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, मैं फिर से आपको डेमो करके बताता हूँ कि कैसे आपको हीटिंग ऑन कॉपर वायर गॉज वो टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है। मैं एक स्पैचुला लिया है और स्पैचुला में मैं थोड़ा सी पिंच क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस लूंगा। आई एम टेकिंग द पिंच क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, पिंच क्वांटिटी, एंड नाउ आई विल होल्ड इन द फ्लेम। अब मैं इसको फ्लेम में होल्ड कर रहा हूँ। यू कैन सी जस्ट आई एम होल्डिंग द फ्लेम, जस्ट बर्न इट, just burn it. Let's see. Now see the compound start burning. See, you can see the compound start burning. You can see the flame. You can see lot of shoots are given out. Lot of unburned carbons are given out. This compound is burning with sooty flame. इसका मतलब ये जो कंपाउंड जो बर्न हो रहा है विद सूटी फ्लेम ये एरोमेटिक है। इसके अंदर कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग होगी, बराबर है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है। तो याद रखिए ये जो हमारी फ्लेम चल रही है वो क्लीन फ्लेम वाली बन रही है, तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है। तो मुझे दो बातें मिली, इक्विवेलेंस मिला मतलब अनसैचुरेटेड, प्लस कंपाउंड को बर्न करके देखा सूटेड फ्लेम मिली मतलब एरोमेटिक। तो इसमें मैंने दो कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन ऑफ द प्रिलिमिनरी टेस्ट, द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज व्हाइट कलर हैविंग समथिंग ऑर्डर एंड इट इज हैविंग अनसैचुरेटेड एंड इट इज एरोमेटिक। मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट जो हमको मिली वो पॉजिटिव टेस्ट को हमको कंक्लूजन में लिखना है। द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज व्हाइट कलर हैविंग सो एंड सो स्मेल, अनसैचुरेटेड एंड सूटी फ्लेम मींस एरोमेटिक। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट। तो ये हमारी प्रिलिमिनरी टेस्ट यहाँ पे खत्म हो गई है। तो याद रखिए इसके बाद दूसरा जो कंपाउंड दिया रहेगा, तीसरा जो भी कंपाउंड दिया रहेगा, दिस इज द सीक्वेंस प्रिलिमिनरी टेस्ट। और वो टेस्ट होने के बाद फिर आपको जाना है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी के लिए कुछ नहीं करना है, सब्सटेंस लेना है और सब्सटेंस को लेके पानी में डिसॉल्व करना है। सी आई एम टेकिंग ए पिंच क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस को पानी में सब्सटेंस लेने का सी सम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आई टेकन और जस्ट पिंच क्वांटिटी ऑफ द वाटर आई विल टेक वाटर। लुक एट हियर, आफ्टर टेकिंग द वाटर जस्ट शेक इट, उसको शेक कीजिए। शेक करने के बाद जस्ट सी वेदर इट गेट डिसॉल्व और नॉट। देखिए मैं शेक करने की कोशिश कर रहा हूँ बट द कंपाउंड इज नॉट गेटिंग डिसॉल्व। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये वाटर इनसोल्युबल है। तो बस हमको यही लिखना है सब्सटेंस प्लस वाटर, और यहाँ पे मैं ये लिखूंगा इनसोल्युबल एंड देन आई विल गो टू द टाइप बी, टेस्ट नंबर बी। और टेस्ट नंबर बी को बोलेंगे टाइप डिटर्मिनेशन फॉर वाटर इनसोल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वो टाइप में हमको 4 टेस्ट लेना है। टेस्ट फॉर एसिड, क्या कंपाउंड एसिडिक है, टेस्ट फॉर फिनॉल, क्या कंपाउंड फिनॉल है, टेस्ट फॉर बेस, क्या कंपाउंड बेस है। और अगर ये तीनों एब्सेंट है, एसिड भी नहीं, फिनॉल भी नहीं, बेस भी नहीं, इसका मतलब द गिवन कंपाउंड इज न्यूट्रल, वो न्यूट्रल हो सकता है, बराबर है। तो ये हमारी टाइप बी है। लेकिन याद रखिए अगर आपको कंपाउंड एसिडिक है तो फिनॉल भी नहीं जाना है, बेस भी नहीं जाना है, न्यूट्रल भी नहीं जाना है, जस्ट स्टॉप देयर, जस्ट स्टॉप देयर। क्योंकि आपका कंपाउंड साइमल्टेनियसली एसिड बेस फिनॉल न्यूट्रल एक साथ नहीं हो सकता, या तो एसिड होगा या तो बेस होगा या तो फिनॉल होगा या तो न्यूट्रल होगा। तो आपको अगर जो भी टेस्ट मिलती है आप वहां पे रुक जाइए और कंक्लूजन निकालिए कि द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर और फिनॉलिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर और न्यूट्रल इन नेचर। तो यहाँ पर हमारा ये प्रिलिमिनरी टेस्ट, सोल्युबिलिटी टेस्ट और टाइप डिटर्मिनेशन टेस्ट फॉर वाटर इनसोल्युबल नाउ। So in the next experiment we will see the type determination and we will see the Lassine test.